Maria Rosa Mystica, fragrant rose of mysticism, wonderful flower of divine knowledge and purity, and blinding beauty of brilliant and shining glory, of power and of overwhelming love, we kneel before you to pray, to look, and to listen, to pray that we should no longer or above all ask only for your gifts, for the salvation of and help for our body and soul, but to pray that we may become like you. To look at you and to inhale your heavenly perfume until we have above all taken something of your immaculate, pure, and perfect being into our inner selves, to listen more attentively to every single word of yours, which you have spoken not only in the past, but even more so in the present, more frequently and more imploringly. We do not always want to talk and beg, but to listen and heed what you say, what your picture is already saying and asking us to do. We now want to listen to your quiet, motherly voice when it speaks to us so tenderly and consolingly with motherly understanding and concern. We now want to open our hearts to you so that we remain loyal to your Son's will. We now want to force ourselves not to say again, we have no time. Instead, to endure your sad glance, even if we should blush and must cast down our eyes in acknowledgement of our many shortcomings. Mary, fragrant rose of mysticism, please help us to take a look inside ourselves and to examine ourselves how we should be able to bear your glance and stand firm before you. Help us to know ourselves better, especially in those areas of thought and deed which displease you. Help us to become like you. We promise that we shall try to imitate you. Please help us to work on ourselves, to let your love shine through whatever and wherever we may be, but especially for priests and religious. प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। आदि पाप रहित उत्पन्न ही माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर जो तेरे चरणों में आए हैं। पांचवा दिन का मैसेज हम लोग स्क्रीन पे नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे पास है। पांचवा दिन का ये मैसेज माता मरियम ने दिया है। The Christians of the Italian nation belong to those who offend most my divine son Jesus through their sins of unchastity. यहाँ पर माँ मरियम इटालियन नेशन बोल रहे हैं, लेकिन केवल इटालियन नेशन नहीं, पूरा संसार आज क्या कर रहा है? प्रभु के हृदय को चोट पहुंचा रही है, पाप कर रही है। और प्रभु को किस पाप से? विशेषकर इम्प्योर पाप से, अनचेस्ट लाइफ की वजह से, अशुद्ध कार्य की वजह से, शारीरिक पापों की वजह से प्रभु को और चोट पहुंचा रही है। Our Lord demands, therefore, prayer, generous sacrifices and penance. प्रभु प्रार्थना, त्याग और तपस्या, प्रायश्चित चाहते हैं। Penance means to accept every day all the little crosses and duties too in spirit of penance. तो penance पश्चाताप का मतलब हमारा जो कुछ रोज का कार्य है, रोज की परेशानियां हैं, रोज की जो छोटे छोटे क्रूस हमारे जीवन में आते हैं, उनको अपनाना ही हमारा पश्चाताप। हमें कुछ बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन के छोटे मोटे क्रूस को ही हमें लेकर के चलना है। The hour of grace, 8 December at noon. माता मरियम रोजा मिस्टिका हमें आवर ऑफ ग्रेस देती है, दया का, कृपा का समय देती है, जो है हर साल दिसंबर 8 तारीख 12 बजे। दिसंबर 8 तारीख 12 बजे ग्रेस का आवर बोलते हैं, 1 घंटा 12 से 1 बजे। उसमें कैसे प्रार्थना करना है मैं भी वो आपको एक दिन बताऊंगा। The hour of grace will produce great and numerous conversions. बहुत मन को फिराएगा ये 1 घंटे का दया का घंटा, ग्रेस का घंटा।
hardened and cold-hearted, resembling this marble will be touched by divine graces. पत्थर और मार्बल जैसा कठोर हृदय भी बदल जाएगी, and they will become faithful to our Lord in loyal love. और प्रभु को इतना प्यार करेगा और वो faithful बनेंगे. तो ये माता मरियम के आज का मैसेज है और हम प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे. मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मुझसे उन सभी चीजों को छीन ले जो मुझे तेरे पास आने से रोकती है. मुझे इन सभी कृपाओं से भर दे जिसके द्वारा मैं आपके और भी करीब आ सकूं. मुझे स्वीकार कर और मुझे तेरे इच्छा अनुसार चला. हे मरिया रोजा मिस्टिका, हमारी प्रार्थना सुन और हमारे लिए प्रार्थना कर. मेरे प्रभु यीशु, हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर. हम प्रार्थना करें एक साथ. हे प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए अपनी माता को एक अति पवित्र जीवन का उदाहरण और विशेषकर पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए एक संरक्षिका के रूप में भेजा है. हम तुझे ये कृपा मांगते हैं कि हम दिन पर दिन तेरी माता का नकल कर पवित्र बन सके और सभी पुरोहितों और धर्म समाजों के लिए एक मध्यस्थता बन सके. हम ये तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. कितनों को यीशु ने बुलाया है, कितनों को यीशु ने बुलाया है. हाँ, हम सभी को यीशु ने बुलाया है ना. कोई आधा हाथ ऐसे किए हैं, वो कंफ्यूज है, यीशु बुलाया है कि नहीं बुलाया. यीशु कितनों को बुलाया है. हाँ, हम सभी को बुलाया है. हम बोले क्योंकि यीशु हम एक एक को बुलाता है. आइए हम इस गाने के साथ बोले, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा. क्योंकि ईसाइयास का ग्रंथ 43:1 आइजाया 43:1 कहता है, प्रभु बोलते हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर के पुकारा है, तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हें बुलाया है. तो आइए हम इसको गा करके शुरू करते हैं. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा. क्या पाएगा तू खो गए आत्मा को, क्या लाभ होगा जीत गए संसार को, क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत करे संसार को. तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा. एक दूसरे को देखकर बोलिए, यीशु बुला रहा. एक दूसरे को देखिए. अगर आप 2-2 जन 3-3 जन बैठे हैं, एक दूसरे को देख करके बोलिए, यीशु आपको बुला रहा है. अगर आप अकेले हैं, आप अपने आप को बोलिए, यीशु आपको बुलाता है. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को स्तुति, प्रभु को महिमा. हमें प्रभु ने
बुलाया है। बोलिए, मुझे यीशु ने बुलाया है, मुझे यीशु ने बुलाया है, यीशु के काम के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए यीशु ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। एक दूसरे को देख करके बोलिए, यीशु ने तुम्हें बुलाया है। बोलना, एक दूसरे को बोलना, यीशु ने तुम्हें बुलाया है, भाग मत जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं प्रभु ने हमें क्या के लिए बुलाया है। संत पौलुस के, जब हम लोग संत पौलुस के लेटर को देखते हैं, संत पौलुस के पत्र को देखते हैं, इतने सुंदर चीज हमें मिलते हैं कि संत पौलुस अपने आप का जो वो एक इंट्रोडक्शन देते हैं। हम लोग बहुत सारे इंट्रोडक्शन देते हैं, हम फलाना के बेटे हैं, हम फलाना की पति है, हम फलाना के पत्नी है, हम फलाना जगह में काम करते हैं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, जो जिस प्रकार से पौलुस अपना इंट्रोडक्शन देता है। हम पौलुस के लेटर्स के, पौलुस के पत्र के सभी स्टार्टिंग को देखेंगे, सभी स्टार्टिंग को देखेंगे, बिगिनिंग को देखेंगे। पौलुस के पत्र सबसे पहले हम खोलेंगे रोमियो के नाम का पत्र। रोमियो के नाम का पत्र स्टार्टिंग अध्याय 1 पद संख्या 1 को देखिए। पौलुस क्या बोलते हैं? ये पत्र ईसा मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है। सेवक पौलुस कौन है? एक सेवक है। मैं और आप एक सेवक है। हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर द्वारा प्रेरित चुना गया है। आप और मैं चुने गए हैं, ईश्वर द्वारा प्रेरित चुने गए हैं। प्रेरित मतलब एपोस्टल, एपोस्टल। आप और मैं एक अपोस्टल है, आप और मुझे प्रभु ने चुना है प्रेरित के रूप में, एक सेवक के रूप में। और आगे कहते हैं, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वे मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है। हमें किससे प्रेरित बनने का वरदान मिला है? यीशु से प्रेरित बनने का वरदान मिला है। और हम दूसरे देखेंगे, कुरिन्थियों का पत्र, कुरिन्थियों का पहला पत्र, कुरिन्थी का पहला पत्र देखेंगे। रोमी के बाद कुरिन्थी। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थेनस का पत्र। यहां भी वो क्या बोल रहा है? मैं प्रेरित हूं। मैं वो नहीं बोलता है मैं ऐसे ऐसे फलाने जगह का हूँ, मैं ऐसे ऐसे घर का हूँ, मेरा पिता ये है, मेरा बेटा ये है, मेरे पत्नी ये है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये जगह का हूँ। वो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन नहीं देता है। अगर सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पूछे, हम बोलेंगे मेरा नाम ऐसा ऐसा है, मैं ये जगह का हूँ, मैं ये परिवार का, मैं इसका बेटा हूँ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम ईश्वर के बुलाए गए एक प्रेरित, एक सेवक है। और हम देखते हैं कुरिन्थियों का नाम का पहला पत्र में, दूसरे पत्र में भी वही दिया गया है, प्रेरित हूं कहा कहता है। और गलतियों के नाम का पत्र खोलेंगे, गलतियों के नाम का पत्र, गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 1, सबके स्टार्टिंग को देखेंगे। पौलुस क्या बोलता है? ये पत्र पौलुस की ओर से है, जो ना तो मनुष्य की ओर से और ना किसी मनुष्य द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, बल्कि ईसा मसीह द्वारा और पिता ईश्वर द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। मृतकों में से पुनर्जीवित किया मतलब हम किसी इंसान के द्वारा नियुक्त किए गए नहीं, हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। हमारी जो शक्ति है वो किसी इंसान से नहीं आती है, हम जो खाते हैं उससे नहीं आती। हमारी शक्ति किससे आती है? ईसा मसीह से आती है।
उसकी मृत्यु से आती है, उसके खून से आती है, उसके क्रूस से आती है, उससे हमारी शक्ति आती है। हालेलुया। हाँ, और हम देखेंगे एफिसी के नाम के पत्र में भी वो यही बोलता है कि मैं प्रेरित हूं। एफिसी का पत्र में भी बोलता है मैं प्रेरित हूं। कोलोसी का पत्र में भी बोलता है मैं प्रेरित हूं। और तीतुस के पत्र में भी बोलता है मैं प्रेरित हूं और मैं सेवक हूं। फिलिपियो के नाम के पत्र में बोलता है कि वो एक सेवक है। और थेसलोनियो के नाम के पत्र हम देखेंगे पौलुस क्या बोलते हैं। थेसलोनी पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थेसलोनिया की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति, आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। अगर हम और आप एक यीशु के द्वारा चुने गए प्रेरित है, यीशु के द्वारा चुने गए सेवक है, तो हमें शांति देना है, शांति बांटनी है। अरे यहां तो हमारे पास ही शांति नहीं है, हम कहां जाके शांति बांटें। शांति बांटनी, और शांति बांटने का मतलब क्या? पौलुस बोल रहा है तुम्हें शांति मिले। क्या पौलुस को पूरी शांति थी? क्या पौलुस को कुछ चिंता ही नहीं था? जरूर चिंताएं थी, जरूर उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो बोलता है तुम्हें शांति देता हूं, यीशु का शांति देता हूं। क्योंकि जो भी हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम यीशु के साथ हैं हम खुश हैं। अगर हम यीशु के साथ हैं हम खुश हैं। कितनी ही बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें पता है कि परमेश्वर कंट्रोल में है, परमेश्वर ने नियंत्रण लिया है, इसीलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने स्वर्गदूतों को यह आदेश दिया है कि जाकर के हमारे आसपास हमारी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे आसपास स्वर्गदूतों को लगाया है, इसलिए हमें पता है जितने भी परिस्थिति क्यों ना आए मैं शांति में हूं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, जितने भी परिस्थिति क्यों ना आए, जितने ही अगर हमें आंखों से भी स्वर्गदूत दिखने लगे फिर भी हम लोग चिंता ही करेंगे, हम लोग इस हाल में। लेकिन हमें समझना है क्रिस्त जीवन में हमें शांति देनी है। यीशु ने सबसे पहले पुनर्जीवित होकर के जब चेलों के बीच में आए, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले, पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले। कुल मिलकर मिलाकर जब हम पौलुस के पत्र देखते हैं शुरुआत में, वो अपने इंट्रोडक्शन यही से ही देता है कि मैं एक प्रेरित हूं, एपोस्टल हूं। एपोस्टल एक ग्रीक वर्ड से आता है और जिसका मतलब है सेंट ऑफ, भेजा गया। एपोस्टल प्रेरित, भेजा गया। आप और मैं भेजे गए, क्या के लिए? खाने के लिए, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए नहीं जी। वो तो है, वो करना है, वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक विशेष कार्य के लिए हम भेजे गए। क्या के लिए? सुसमाचार सुनाने। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जाओ जाओ मेरे चेलो, सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। जाओ मेरे चेलो, सुनाओ सुसमाचार। और सुसमाचार क्या लाता है? मुक्ति लाता है। सुसमाचार क्या लाता है? जीवन लाता है। सुसमाचार क्या लाता है? चंगाई लाता है। सुसमाचार शांति लाता है। लेकिन जो सुसमाचार आज हम सुना रहे हैं, वो सुसमाचार क्या चंगाई ला रही है? उल्टा बीमारी फैला रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूरन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन पा रहे हैं ना? क्लियर है ना? ठीक है। तो हम लोग सुन रहे थे, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम शांति लाते हैं, हम जीवन लाते हैं, चंगाई लाते हैं, छुटकारा लाते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? ये सुसमाचार तो पढ़ नहीं रहे हैं ना, और हम लोग अपना ही समाचार सु नहीं है, खाली समाचार बना के घुमा रहे हैं, जो क्या ला रही है? चंगाई। चंगाई नहीं ला रही है, बीमारी ला रही है, मुक्ति नहीं ला रही है, और बॉन्डेज ला रहा है। शांति नहीं ला रही है, अशांति ला रही है। सुसमाचार से सू गया तो काहे के लिए हम लोग प्रेरित हैं? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये वचन पढ़ा ही नहीं है। दुख की बात है कि हम क्रिस्तीय है बिना पावर के, बिना शक्ति के। We are the children of all powerful God. We are powerless children of all powerful God. क्या आज हम शक्तिशाली परमेश्वर के शक्तिहीन बच्चे हैं? शक्तिशाली परमेश्वर के शक्तिहीन बच्चे बन गए, क्योंकि जो आत्मा की शक्ति है उसे तो हम लोगों ने महसूस नहीं किया। जो आत्मा की शक्ति है उसे हम लोगों ने अपने जीवन में कार्य करने दिया ही नहीं। The power of the Holy Spirit is in the obedience to the word. पवित्र आत्मा की शक्ति क्या में है? पवित्र वचन की आज्ञा पालन करने, पवित्र वचन के आज्ञा पालन करने। जब तक ये वचन आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, आपके द्वारा शक्ति नहीं निकलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, निकलेगी। हम सबको पोर्शन की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है ना। अगर हम लोग अगर हमें काम में जाना है, ड्यूटी जानी है, अगर वो ड्यूटी जाने से पहले अगर हम लोगों ने खाना नहीं खाया तो क्या होगा? काम करने के लिए शक्ति नहीं है ना। तो वैसे ही तो हमें भी आत्मिक शक्ति की तो जरूरत है। और कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च क्या बोलता है? द वर्ड ऑफ गॉड नरिशेस अस, द वर्ड ऑफ गॉड नरिशेस अस। हमें न्यूट्रिशन देने वाला, हमें नरिशमेंट देने वाला क्या है? वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द। परमेश्वर का शब्द ही तो हमें न्यूट्रिशन देगा। परमेश्वर का शब्द ही तो हमें क्या देगा? हमें पावर देगा। और बार बार मैं बोलता हूं, परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन में ही पवित्र आत्मा की शक्ति है। फाइनल, इससे और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। हमें शक्ति तो चाहिए, हमें सामर्थ्य तो चाहिए, लेकिन हम वचन को नहीं पालन कर रहे। अरे ये कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? प्रभु ने हमें नियुक्त किया है प्रेरित के रूप में, प्रभु ने हमें नियुक्त किया है एक परमेश्वर के कार्य करने के लिए, लेकिन हमारे में शक्ति ही नहीं। वो शक्ति तो दे रहा है, लेकिन शक्ति हम प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। और हम बोलते हैं आत्मा की और अभिषेक की जरूरत है। नहीं, नहीं जी, आत्मा की और अभिषेक की जरूरत नहीं है। आत्मा उतना ही है। किसी का आत्मा बड़ा, किसी का आत्मा छोटा नहीं होता है। आत्मा, पवित्र आत्मा उतना ही है। और आत्मा कहीं से आएगा नहीं, आत्मा आपके अंदर है। हम बोलेंगे जब तक वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर नहीं बढ़ेगा मैं नहीं कर पाऊंगा। गलत है, आई रे, गलत है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा की शक्ति उतना ही पावरफुल है, लेकिन क्या हम इस वचन के द्वारा उस आत्मा को एक्टिवेट किए? वचन को एक्टिवेट करना है ना। जब पावर को एक्टिवेट करना है, आत्मा को एक्टिवेट करना है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं जो शक्तिशाली है। तो क्या बच्चों के पास कुछ शक्ति नहीं आएगी? अगर प्रभु भेज रहे हैं तो जरूर हमें एक कुछ कार्य के लिए भेज रहे हैं, जरूर एक शक्ति के साथ भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर कोई संसार के साथ लड़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, शैतान के साथ लड़ने के लिए भेज रहे हैं।
और शैतान को बांधने निकालने की शक्ति आप और मेरे को दी गई है, आप और मेरे को दी गई। इसलिए तो हम लोग क्या सुनते, क्या पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बोलता है, मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और सभी शैतानी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है और तुम्हें कोई भी हानि नहीं कर सकती, हमें कोई भी हानि नहीं कर सकती। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27। कुरिन्थियों का पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27। हम कहेंगे प्रभु ने मुझे चुना है, लेकिन मैं तो इतना पापी हूं ना, मैं तो इतना कमजोर हूं ना, मैं तो इतना नीच हूं ना। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? कुरिन्थी का नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27 बोलती है, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं, दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। अगर लोग आपको मूर्ख समझते हैं, खुश हो जाइए, प्रभु आपको चुनेंगे। अगर कोई बोलता है तुम मूर्ख हो, तुम में तो कुछ दिमाग ही नहीं है, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, खुश हो जाए, क्योंकि प्रभु आपको चुनेगा। प्रभु उनको नहीं चुनेगा, प्रभु आपको चुनेगा, क्योंकि उनको लज्जित करना है। क्यों? क्योंकि दूसरों के पास जो ज्ञानी है उनको क्या का घमंड है? अपनी सोच का, अपने ज्ञान का घमंड है। लेकिन अगर हम कमजोर है, मूर्ख है और प्रभु हमें यूज कर रहे हैं, तो हम अपनी शक्ति के द्वारा नहीं काम करेंगे, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा काम करेंगे। जिस प्रकार से ये प्रमाणित होगा, इंसान के शक्ति के सामने हर एक शक्तियों को घुटने टेकने पड़ेंगे। इंसान की शक्ति के सामने हर एक शक्तियों को घुटने टेकने पड़ेंगे। फिलिपियों के नाम का पत्र खोलिए, फिलिपियों के नाम का पत्र खोलिए, फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10। जिससे ईसा का नाम सुनकर, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अर्धलोक के सब निवासी घुटने टेके। जो भी शक्तियां क्यों ना हो, आपके परिवार में, आपके घर में बहुत सारी शक्तियां क्यों ना हो, अंधकार की शक्तियां क्यों ना हो, जादू टोना क्यों ना हो, यीशु के नाम से आप तोड़ सकते हैं। क्योंकि हर उस आत्मा जो आपके विरुद्ध कार्य करता है, हर एक आत्मा जो ईश्वर के बच्चों के विरुद्ध काम करता है, हर एक्सीडेंट की आत्माएं, हर मृत्यु की आत्माएं, हर बीमारी की आत्माएं, हर एडिक्शन की आत्माएं, हर जादू टोना की आत्माएं, सभी का नाम है। लेकिन उन नामों से सबसे श्रेष्ठ नाम है यीशु का नाम, जिसके नाम से सभी को घुटने टेकने पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी चीज का नाम है, लेकिन उन नामों से सर्वश्रेष्ठ है यीशु क्रिस्त का नाम। और वो नाम में हमारी शक्ति है, वो नाम आपको और मुझे दिया गया है शैतान की बंधन को तोड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए आप और मुझे परमेश्वर ने कितना प्यार किया है। सोचिए आप और मुझे परमेश्वर ने कितने सामर्थ्य दी है। खाली वो सामर्थ्य को हमें रियलाइज करना है। शक्ति हम में ही है, लेकिन उस शक्ति को एक्टिवेट करना है, उस शक्ति को एक्टिवेट करना है। अगर कोई भी शैतान की शक्ति है, आपको किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। पुरोहित की आशीष जरूरी है। पुरोहित की आशीष के बारे में मैं यहां नहीं कह रहा, पुरोहित की आशीष जरूरी है, उनकी प्रार्थना की जरूरी है। लेकिन उसको छोड़कर अगर हम किसी प्रार्थना करने के वाले पीछे भाग रहे हैं,
अगर हम कहीं इधर उधर भाग रहे हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा हमें यीशु के नाम से अधिकार मिल चुका है। बीमारियां चंगे हो जाएंगे, अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, बीमारियां निकल जाएगी, शैतान की शक्तियां टूट जाएगी। आपके विरुद्ध किसी ने भी जादू टोना क्यों ना किया हो, कोई भी चीज क्यों ना किया, वो टूट जाएगी यीशु के नाम से। और ये शक्ति बपतिस्मा के द्वारा आप में है। हम अपने बपतिस्मा को ऐसे इस प्रकार से ऑर्डिनरी रूप से लेते हैं। हम लोग सोचते हैं ये हमारा जो बपतिस्मा है, हम केवल बपतिस्मा के द्वारा यीशु के ख्रिस्त जीवन में एक हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल उतना ही नहीं है, बपतिस्मा के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हुए हैं। और जब यीशु कहते हैं तुम जो मुझे करते देख रहे हो उससे भी बड़े कार्य तुम करोगे, इसमें प्रभु की कोई सच्चाई है, इसलिए उसने आपको और मेरे के लिए वो वचन बोला है कि तुम जो मुझे करते देखते हो उससे भी बड़े कार्य करोगे। यीशु का वचन, मेरा नहीं है, यीशु का वचन। तुम कार्य करोगे, प्रभु कहते, अगर तुम मुझे मृत्यु व्यक्ति को उठाते देखोगे तुम भी कर सकोगे मेरे नाम से। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, यूहन्ना 14:14, तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगते हो मैं तुम्हें प्रदान करता। तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगते हो मैं तुम्हें प्रदान करता। हम देखते हैं ये प्रेरित चरित्र को देखेंगे, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स अध्याय 4, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र अध्याय 4। उनतीसवें पद से देखेंगे, 29वें पद से, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 29 से हम लोग देखेंगे वचन क्या कहता है। प्रभु तू उनकी धार्मिकियों पर ध्यान दे और अपने सेवक को यह कृपा प्रदान कर, अपने सेवक को यह कृपा प्रदान कर कि वह निर्भीकता तेरे वचन सुनाए। और अध्याय 30 को आप ध्यान दीजिए, तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दे। और इसके बाद क्या हुई, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया, पूरा जगह हिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं ईसाइयास का ग्रंथ 67 का 22, आइजाया 66:22, मैं पढ़कर सुनाता हूं। ईसाइया 66:22, यहोवा की यह वाणी। जब हम कैथोलिक बाइबल कामिल बुक का देखें तो सब कुछ सही लिखा है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं है, वो लोग थोड़ा सिंपल रूप से लिखे हैं, इसलिए वो उतना इफेक्ट नहीं दिया गया है हिंदी बाइबल में। इसलिए मैं दूसरा बाइबल से पढ़ रहा हूं। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई है, सब वस्तुएं उनकी हाथों की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है। हम सबको तो प्रभु ने बनाया है, उनके अपने हाथों से बनाया है, हम उनके हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के है, जो दीन है, पश्चाताप करते हैं, नम्र है, उनकी ओर मेरी नजर लगाता हूं और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। The one who trembles at my word, says the Lord. Trembles, थरथराता हो, मतलब ऐसा नहीं जब हम करिश्माई प्रार्थना में जाते हैं हम थरथर कांपते हैं, वैसा वो प्रभु नहीं बोल रहे हैं। जो मेरे वचन पर थरथराता हो, मतलब जो मेरे वचन को गंभीरता से लेता हो,
जो मेरे वचन को जरूरी रूप से लेता हो, द वन हु फील्स दैट द वर्ड इज इंपॉर्टेंट एंड डज नॉट टेक इट लाइटली, कि हम परमेश्वर को वचन को गंभीरता से ले, केवल एक मामूली रूप से नहीं। हम लोग ज्यादातर मामूली रूप से लेते हैं। हाँ, प्रभु ने ये वचन बोला है, हाँ मेरे साथ मिलता जुलता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, उसमें काम करना है। अगर परमेश्वर का कोई वचन हमें छूता है, हम लोग क्या करते हैं, ये आज एक दिन पढ़ते हैं, हाँ प्रभु ने मुझे ये बोला है, उसके साथ बैठे रहते। बैठो मत, उठो और उस पे काम करो। बैठो मत, उठो और उस पे काम करो। अगर प्रभु बोलते हैं तुम्हारी ये कमजोरी है, वचन ये कहता है उसके विरुद्ध तुम्हें ये नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। उसमें कोई प्रोबेबिलिटी मे बी और मे नॉट नहीं है। हाँ हाँ है, ना ना है, पाप पाप है और आशीष कृपा एक जगह, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं। इसलिए उस शक्ति को जब तक हम वचन के द्वारा हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग वचन के, पवित्र आत्मा बोलते हैं, पवित्र आत्मा में कैसे बढ़ना है ब्रदर, उस शक्ति को कैसे काम करना है ब्रदर, वचन को पढ़ो, वचन को पालन करो, वचन और परमेश्वर का वचन, और कुछ नहीं। इसमें सामर्थ्य, शक्ति है, चंगाई। अभी समय खत्म होने वाली है, फिर से ये लिंक के द्वारा अंदर आ जाइए, चंगाई, छुटकारे और अभिषेक के प्रार्थना के लिए। 1 मिनट बाद इसी लिंक के द्वारा आप अंदर आइए, चंगाई, छुटकारा और अभिषेक के प्रार्थना के लिए। ये अब टाइम लिमिट 40 मिनट्स खत्म होने वाली है। फिर से यही लिंक प्रेस करके अभी 1 मिनट बाद आप ज्वाइन कीजिए।